Welcome to Key to Pharmacology. I am Dr. Sehrish Zafar, and those who are new here, I am an Associate Professor of Pharmacology at CMH Lahore Medical College. Does the role of diuretics in the ionic equilibriums across blood and urine confuses you? If yes, do not skip this video and watch till the end so that we can unbox the diuretics and their mechanism of actions. This lecture will be slightly different from our previous lectures. हम generally pathophysiology पहले discuss करते हैं, followed by the drugs, and lastly we discuss the clinical pharmacology. Since the role of diuretics is very closely related to their physiological mechanisms of the nephron, तो हम side by side discuss करेंगे. This will be a side by side lecture जिसमें पहले हम physiology बताएंगे, साथ ही हम उसकी drugs बता देंगे, और clinical pharmacology को भी हम in between interspersely discuss करेंगे. That will not be a separate part this time. Kidneys का function क्या है? Main purpose तो excretion है of the waste products, but simultaneously acid base balance भी maintain होता है, और साथ साथ हमारी osmolality regulate होती है blood की. Then there is blood pressure regulation, hormone production जैसे erythropoietin है, renin है, ये kidneys produce करती हैं. Kidney का functional unit nephron है. सबसे पहले filtration होती है at the glomerulus, जिस पे हम glomerular filtration rate determine करते हैं. देन क्या होता है कि जितना कुछ फ़िल्टर हो गया होता है वो सब कुछ उसमें से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, स्पेशली द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्टिवली सिक्रीट हो जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो एक्टिवली पम्प्ड इनटू द ट्यूब्यूल्स. इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन इन डिटेल, सो वी कैन सी देयर इज़ अ रीनल कॉर्पसल जहाँ पे आपका बोमन कैप्सूल होता है और filtration का process, ultra filtration हो रही होती है. This is followed by a proximal tubule, then comes the loop of Henle, followed by distal tubule, and then the collecting duct. हर part का अपना एक individual function, and we will see how that is important in the role of diuretics. While we are saying the word again and again, what are diuretics? Diuretics उन drugs को कहते हैं which increase the volume of urine. Basically ये natriuretics होती हैं, ये excretion of sodium कराती हैं. जब सोडियम एक्सक्रीट होता है तो वाटर ऑटोमेटिकली फॉलो करता है बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्योरली एक्वायूरेटिक्स होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर की एक्सक्रीशन कराती हैं, बट दे आर इन अ लिमिटेड नंबर. बिकॉज नाट्रियूरेटिक्स इनएविटेबली वाटर को एक्सक्रीट कराएंगे तो उनको जनरली डायूरेटिक्स कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू मिनी कैड्जिंग, डायूरेटिक्स को हम अगर क्लासीफाई करें तो वी हैव गॉट डायूरेटिक्स विच एक्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, and depending upon that part उसकी classification की जाती है. There are drugs which act on the proximal convoluted tubule such as carbonic anhydrase inhibitors, and there are drugs which act on the thick ascending limb of loop of Henle such as loop diuretics. Then there are drugs which act on the distal convoluted tubule which includes the thiazides, and the drugs that act on the cortical collecting tubule which are potassium sparing diuretics. कुछ ऐसी drugs हैं जो water की excretion को modify करती हैं. ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ओवरलैप करती हैं दोनों ग्रुप्स में, एंड देन दे आर ADH agonist and antagonist which are primarily concerned with the water balance and water regulation in the body. डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन और फर्दर उसमें कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड है एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है. हमें ये तो पता होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ डायूरेटिक्स, लेकिन उसमें आगे कौन सी ड्रग्स हैं वी नीड टू नो एटलीस्ट 3 to 4 नेम्स इन ईच ग्रुप इफ पॉसिबल. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स इंक्लूड्स एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड एंड ब्रेंजोलामाइड. लूप डायूरेटिक्स इंक्लूड्स furosemide, bumetanide, torsemide एंड एथाक्राइनिक एसिड. थायाजाइड डायूरेटिक्स में हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और क्लोरथैलिडोन. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स इंक्लूड्स स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लेरेनोन, एमिलोराइड एंड ट्राइमटेरिन. ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में टिपिकली जो यूज होता है क्लिनिकली दैट इज मैनेटॉल. ADH agonists include desmopressin and vasopressin, while ADH antagonists includes कॉनिवेप्टन, टॉलवेप्टन एंड डेमेक्लोसाइक्लिन. बिग कैड्जिंग में बहुत ज़बरदस्त चार्ट दिया हुआ है जो कि बहुत नाइसली जो है वो समराइज करता है ईच पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, जो हमारे नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करता है, और ये भी बताता है कि वहाँ पे प्राइमरी ड्रग टारगेट्स कौन से हैं और कौन सी डायूरेटिक्स हैं जो उस पार्ट पे एक्ट करती हैं. एंड माइंड दिस कि ये एग्ज़ाम्स में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, अक्सर टैब्यूलेट करने के लिए SEQ आता होता है. दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट विच यू शुड रीड क्लियरली, एंड इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ईजी डिस्क्रिप्शन है जो यू जस्ट नीड टू नो एंड पुट एवरीथिंग टुगेदर कि कहाँ पे क्या चीज़ एक्ट करती है और क्या उसका प्राइमरी मॉलिक्यूलर टारगेट होता है.
ये डायग्राम मिनी कैटजिंग में भी है, बिग कैटजिंग में भी है और एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछी जाती है। पहले जब एसक्यूज़ नहीं होते थे तो अक्सर इसकी एज इट इज़ पिक्चर आ जाती थी लेबल करने के लिए। वी कैन सी यहाँ पे नंबर वाइज बताया गया है, डिफरेंट पार्ट्स का बताया गया है कि किस एरिया पे कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट टू summarize the action site of action of the drugs particularly. After the glomerulus, जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा किडनी ट्यूब्यूल्स में, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ पीसीटी में क्या हो रहा होता है, सोडियम बायोकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ये सारा कुछ रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इमीडिएटली ग्लोमेरुलस के बाद होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन वहीं पे हो जाती है कि जितना कुछ भी प्रिजर्व करना है वो वहीं से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब अबाउट 60 to 70% जो सोडियम है ना वो इस पार्ट से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें कुछ रीअब्जॉर्प्शन जो है वो को ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रही होती है और कुछ स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी होते हैं, स्पेशली जो आपके पास एसिड्स एंड बेसिस होते हैं उनके लिए। वाटर पैसिवली फॉलो करेगा। जब आप इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, आयंस को, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवा देंगे तो वाटर इनएविटेबली इट विल फॉलो द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉन्वोल्यूटेड होता है। उसका जो इनिशियल पार्ट होता है उसमें देयर आर मल्टीपल बेंड्स, वो कॉन्वोल्यूटेड सा पार्ट होता है और उसके बाद एक स्ट्रेट सेगमेंट आता है जो उसका डिस्टल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का। मैं बात प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की ही कर रही हूँ, लेकिन उसमें इनिशियली कॉन्वोल्यूशंस होती हैं, लेटर ऑन एक स्ट्रेट पार्ट आ जाता है, उसको कहते होते हैं स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रेट सेगमेंट होता है ना, इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं। कुछ एसिड्स होते हैं जिनको पंप किया जाता है, एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी इनटू दीज ट्यूब्यूल्स, जैसे कि यूरिक एसिड और भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो देयर आर सर्टेन डायूरेटिक्स, एनसेड्स, एंटीबायोटिक्स जो कि इस पंप के थ्रू एक्सक्रीट की जाती हैं। इफ़ यू लुक एट द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सेल बना हुआ है जो कि ट्यूब्यूलर सेल है। ऑन दी येलो साइड वी हैव दी ल्यूमेन, जो कि बेसिकली जहाँ पे यूरिन फॉर्म हो रहा है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स का ल्यूमेन है। और ऑन दी ब्लू साइड वी कैन सी कि हमारे पास इंटरस्टिशियम है जहाँ पे ब्लड, जहाँ पे हम रीअब्जॉर्ब करेंगे और वो ब्लड में चले जाएंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स जिनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ये कहाँ से इसका सिरा पकड़ा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूज करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इफ़ वी फॉलो वन पॉइंट, वी लुक एट दी बाइकार्बोनेट आयंस। नॉर्मली जब सब कुछ ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर हो गया तो सोडियम भी हमारे जो है वो ल्यूमेन में थी, बाइकार्बोनेट्स भी ल्यूमेन में थी। देयर इज़ अ पंप कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। वो क्या करता है कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेता है इनटू द सेल और उसके इन टर्न ऑफ सोडियम वो हाइड्रोजन सिक्रीट कर देता है इनटू द ल्यूमेन। दिस हाइड्रोजन कंबाइंस विद द बाइकार्बोनेट आयन जो कि ऑलरेडी फिल्टर हुई हुई थी एंड दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड क्या है? इट इज़ अ वीक एसिड। वीक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वीक एसिड डिसोसिएट्स वो डिसोसिएट कर जाता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये होता कैसे है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ट्यूब्यूलर साइटोप्लाज्म में भी होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज स्टिमुलेट करती है फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। This carbon dioxide, because carbon dioxide is lipid soluble, it gets absorbed into the tubular cell. अब सेल के अंदर भी ऑब्वियसली वाटर तो वहाँ भी प्रेजेंट है, इंट्रासेल्युलर वाटर प्रेजेंट है। हेयर अगेन combining with water in the presence of the cytosolic carbonic anhydrase, ये कार्बोनिक एसिड बन जाती है दोबारा से। This carbonic acid, because it is a weak acid, it dissociates into hydrogen ions and bicarbonate ions. बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं इनटू द इंटरस्टिशियम और हाइड्रोजन आयंस एक सर्कुलर पूल बना देती हैं जो बार बार रिसाइकल हो रहा होता है, बिकॉज ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इसको यहाँ से दोबारा सिक्रीट कर देता है इनटू द ल्यूमेन। वी कैन सी कि सोडियम तो डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब हो गया, लेकिन बाइकार्बोनेट को डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब हम नहीं कर सकते थे, तो ये एक पूरा सर्कल है जो फॉलो किया जाता है इन ऑर्डर टू रीअब्जॉर्ब द बाइकार्बोनेट आयंस। द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ल्यूमेन इज़ मच हायर देन द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट भी था ल्यूमेन में, साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी था, कुछ और भी होंगे। सोडियम बहुत ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट रिलेटिवली कम है।
तो जब ये साइकिल चलती जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बाइकार्बोनेट ख़त्म हो जाते हैं. नाउ सोडियम इज़ बीइंग रीअब्सॉर्ब बाय द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और इन टर्न हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट हो रही है, लेकिन आगे से बाइकार्बोनेट है ही नहीं जो उसके साथ कंबाइन करे. तो जब ये बाइकार्बोनेट नहीं होती है तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस जाके यूरिन के ल्यूमेन में यूरिन की पीएच को डिक्रीज़ कर देती है, एसिडिक कर देते हैं. दिस एसिडिक पीएच इट एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से आप नीचे देख रहे हैं कि देयर इज़ अ सेपरेट क्लोराइड बेस एक्सचेंजर. ये जो पंप है ये एक्टिवेट हो जाता है एंड हेंस क्लोराइड आयंस जो है वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं. तो इसी पंप की बेसिस पे कि जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एक्शन जो है वो सैचुरेट होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से बिकॉज ल्यूमिनल पीएच फॉल करती है तो क्लोराइड बेस एक्सचेंजर एक्टिवेट हो जाता है और क्लोराइड आयंस रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है. देयर इज़ अनदर ट्रांसपोर्टर विच इज़ कॉल्ड SgLT2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर बेसिकली जो ग्लूकोज और सोडियम दोनों को रीअब्जॉर्ब करता है. वी विल डिस्कस दिस सेपरेटली जब हम डिस्कस करेंगे SgLT2 इनहिबिटर्स. फॉर नाउ हमने ये देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या हुआ. बाइकार्बोनेट्स और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं वो ट्यूब्यूलर फ्लूइड से रिमूव कर दिए गए, रीअब्जॉर्ब कर दिए गए. जो पीछे फ्लूइड रह गया वो प्रोडोमिनेंटली क्या रह गया, सोडियम भी हमने रीअब्जॉर्ब की, बाइकार्बोनेट भी हमने रीअब्जॉर्ब किया, बट सोडियम क्लोराइड जो है वो रह गया बिकॉज सोडियम एक्सेस में थी और क्लोराइड ऑलरेडी वहाँ पे था. अब हमने ये सारी बात डिस्कस कर ली कि इन दिस कंडीशन जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होती रहेगी और वहाँ पे इन टर्न बाइकार्बोनेट आयंस नहीं होंगी तो हाइड्रोजन आयन उसकी पीएच डिक्रीज़ कर देगी ल्यूमिन में एंड दिस विल एक्ट एज दी पैरेलल फोर्स फॉर दी क्लोराइड आयन एब्जॉर्प्शन. तो पैरेलल उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम तो ऑब्वियसली पहले ही सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एब्जॉर्ब कर रहा था, क्लोराइड बेस एक्सचेंजर एक्टिवेट हो गया बिकॉज ऑफ अ फॉल इन द ल्यूमिन पीएच, तो अब क्लोराइड आयंस भी रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो गई. तो दिस इज़ हाउ सोडियम क्लोराइड इज़ रीअब्जॉर्ब. पहले सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो गया, जब बाइकार्बोनेट्स ख़त्म हो गए तो साइकिल शिफ्ट हुआ और सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो गया. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, नाउ वी विल सी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का रोल क्या है. बेसिकली दे आर इनहिबिटर्स ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस which is present in the luminal membrane as well as it is present in the tubular cytoplasm. होगा क्या कि जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट किया तो उसकी वजह से इवेंचुअली हमने बाइकार्बोनेट आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर दिया. जब बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी तो 85% ऑफ द बाइकार्बोनेट्स नॉर्मली हमारी रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं और जब हम वो नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी एक्सक्रीट हो जाएगी. अप टू 45% जो है वो हम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं बाइकार्बोनेट्स की. ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देने से डायूरेसिस होगा, बाइकार्बोनेट्स का लॉस होगा और हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. और ये सब कुछ कैसे होगा? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट प्रोसेस विच इज़ अकरिंग इन द ट्यूब्यूलर सेल एट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब हम ये कहते हैं कि हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया. We will see that carbonic acid will not be converted into carbon dioxide. This carbon dioxide will not be reabsorbed into the cell and bicarbonate ions eventually will not be reabsorbed. So number one, bicarbonate loss होना शुरू हो गया. Now since this cycle is not working, तो हम जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है उसको भी स्लो डाउन कर देंगे क्योंकि हम इस साइकिल के थ्रू हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिसाइकिल हो रही थी, तो हमने हाइड्रोजन आयंस की रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी रोक दिया. तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब सोडियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा. सो देयर विल बी नो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और वेरी मिनिमल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन. देयर विल बी नो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन. जब ये सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आपके रीअब्जॉर्ब नहीं होते तो इवेंचुअली वाटर विल ऑलवेज फॉलो और जहाँ सोडियम होगा वहाँ वाटर होगा. तो जब आप सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करेंगे तो वाटर खुद ब खुद एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा. अब ये सारी सिचुएशन में बाइकार्बोनेट वॉश आउट हो जाएगा बिकॉज बाइकार्बोनेट्स हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकती हैं और उससे ज़्यादा वो एक्सक्रीट हम नहीं, मतलब वो जब रीअब्जॉर्ब ही नहीं हो रही हैं तो एक्सक्रीट होती जा रही हैं तो उनका लॉस होता जा रहा है. तो जाहिर है कि जब नेक्स्ट साइकिल्स आएंगे उसमें बाइकार्बोनेट कम से कम होती जाएंगी विच विल फर्दर कॉज एक्टिवेशन ऑफ द क्लोराइड बेस एक्सचेंजर और क्लोराइड आयन इन टर्न ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन. तो टू कीप द पंप रनिंग इन सम फॉर्म क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर विल कीप ऑन
ट्राइंग टू रीअब्जॉर्ब एज मच सोडियम एज पॉसिबल, जो रिमेनिंग सोडियम वो रीअब्जॉर्ब कर सके, एंड दिस विल प्रोवाइड अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द क्लोराइड बेस एक्सचेंजर, जिसकी वजह से हाइपर क्लोरीमिया होना शुरू हो जाएगा. दे विल बी हाइपर क्लोरीमिया, दे विल बी डायूरेसिस, दे विल बी लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हो रही है यहाँ पे कि जब बाइकार्बोनेट्स का इतना ज़्यादा लॉस होगा तो ब्लड पीएच को क्या होगा, ब्लड में एसिडोसिस हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस, जो कि एक नेचुरल बफर होती हैं और पीएच को न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं. टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल यूजेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ग्लूकोमा में बहुत एफिशिएंट हैं. डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड यूज़ की जाती हैं. देयर आर सर्टन ओरल प्रिपरेशंस व्हिच आर आल्सो अवेलेबल नाउ. उसके अलावा क्या यूज़ है कि यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन. अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं, तो सिस्टीन के जो स्टोन्स हैं ना, ये एसिडिक पीएच में ज़्यादा बनते होते हैं, और गिविंग दिस डायूरेटिक आप बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ यूरिन बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे सिस्टीन स्टोन्स एक्यूमुलेट नहीं करेंगे. अगर किसी पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है बिकॉज ऑफ एनी कॉज, तो उस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को भी डायूरेटिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ग्रुप देके ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आप बाइकार्बोनेट का लॉस करवा देंगे और ब्लड पीएच को आप डिक्रीज़ करवा देंगे. एंड एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द CSF फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. तो अब क्या होता है कि जब आप डिक्रीज़ करते हैं बाइकार्बोनेट कंटेंट को और CSF की अमाउंट दैट इज़ प्रोड्यूस, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द बाइकार्बोनेट माउंटेन सिकनेस जो है वो पेशेंट्स में प्रिवेंट की जाती है. दिस सेम मैकेनिज्म फॉलोज इन ग्लूकोमा ऑल्सो, क्योंकि ग्लूकोमा में भी सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर जो है उसको डिक्रीज़ किया जा रहा होता है बाय डिक्रीजिंग द बाइकार्बोनेट कंटेंट बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज व्हिच इज़ प्रेजेंट इन द सिलियरी एपिथेलियम इन द आइज़. अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ने हाइपरक्लोरीमिया भी कराना है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कराना है. दिस इज़ वेरी सिंपल, हमने इसके मैकेनिज्म्स भी देख लिए, क्योंकि हमें पता है कि बाइकार्बोनेट का लॉस होगा तो आपकी द ब्लड पीएच विल शिफ्ट टुवर्ड्स एसिडोसिस. अच्छा, अमेजिंगली हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सिस्टीन स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन करते हैं हम, लेकिन एडवर्स इफेक्ट, वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स इज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स. वाई? इसलिए कि कुछ स्टोन्स एसिडिक पीएच में जल्दी प्रेसिपिटेट करते हैं, कुछ स्टोन्स अल्कलाइन पीएच में जल्दी प्रेसिपिटेट करते हैं. वाइल alkalinization of the urine will prevent the formation of the acidic stones, but it will aggravate the production of the alkaline stones. तो जो alkaline medium में stones precipitate करते हैं उनको आप trigger कर सकते हैं by giving carbonic anhydrase inhibitors, and this can turn out to be one of the side effects. Renal potassium wasting is one of the side effects of practically every diuretic except the potassium sparing diuretics. और इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वी विल डिस्कस इट व्हेन वी कम टू द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, बिकॉज उससे पहले तक आपको ये समझ नहीं आएगा. जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट. हर डायूरेटिक हाइपोकैलीमिया क्यों करती है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस पोटेशियम वेस्टिंग? दीज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स बाय इंटरफेयरिंग विद द कंटेंट ऑफ CSF they cause drowsiness and paresthesias sometime. Paresthesias क्या होती हैं? टिंगलिंग सेंसेशंस, एबनॉर्मल सेंसरी सेंसेशंस जो कोई पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करे. एसेटोजोलामाइड जो है वो ये सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, एंड वी नो दिस फैक्ट कि जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एलर्जिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है. सो दीज कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एज वेल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.